Hi guys, over the next 1 week I am in Vashi, Nagpur, Pune, Thane, Borivali, Dadar, Aurangabad, Nasik, Delhi. If you're based in any of these locations and want to attend my workshop for all the non-CAT exam, CD22, CAT 22, you are most welcome to attend. Please call or WhatsApp on any of these numbers given here. Hi guys, hi everyone. Today we have with us Ankita Agarwal. Ankita Agarwal is 99.97 percentile. So Ankita, we want to first understand your background, where you from, which city you are from, and your education, and then we'll move to the other areas. First of all, thank you, sir, for inviting me to this TWT talk. Regarding my background, I am born and brought up in Dombivli area of Thane district. I did my schooling from here only. After that, I graduated from Mulund College of Commerce with BCom degree, and also I am a chartered accountant. I qualified in November 2017. After that, I worked with JSW Energy Limited for close to 2 years. So that's my background. So while working, you plan to do MBA के MBA का plan करे थे, because CA के बाद MBA करना not many people do that, even though it's a trend now. Correct. To look at the other areas. So when it happened, why the shift happened towards MBA? सर वहाँ पे वर्क करते करते ही आई रियलाइज दैट फाइनेंस इज अ वेरी नैरो डोमेन. I wanted to understand all the aspects of business and the intermingling of various domains such as HR, sales, marketing, finance. I wanted to understand and explore every area of business. So I thought, what better than an MBA degree that would provide me such a formal training. Super. Then आपने अपना job छोड़ दिया. How much you scored last year? Last year I scored 99.90 percentile with 134 marks. बाप तो रे. एक मार्क्स से रह गया था जेबी. टेक्निकली द लास्ट ओपन कैटेगरी पर्सन टू गेट एडमिटेड स्कोर्ड 135 मार्क्स. So regarding ranks, it was around 15-20 ranks में पीछे थी, but marks के basis पे देखा जाए तो single mark रह गया था. एक मार्क्स से जेबी. So guys, those who time leave a topic, मैं ये छोड़ देता हूँ, वो छोड़, clocks and calendar नहीं आ रहा. तो this is the value of 1 mark. दो चीजें, एक तो या एक साल दोबारा you have to wait, and second thing is के there are 15 rank, there are around 15 to 20 ranks on one score. मतलब अगर आपके 3 मार्क्स कम आ गए तो मतलब जे भी हाथ से गया. एंड दैट्स अ प्रॉब्लम यार. इफ यू लुक एट कैट ना, कैट में कट ऑफ क्लियर करो तो तुम्हारा काम हो गया. सीईटी हैव टू बी अ टॉपर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू. डू यू माइंड टेलिंग अस कैट का स्कोर दिस ईयर? हाउ मच यू स्कोर्ड इन कैट? I did not attempt this year. Last year I scored 88 percentile. So I also converted some baby IIM calls based on my overall profile. बट फिर सोचा कि नहीं, टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूशन जाना है जेबी. अगर मेरे को पोटेंशियल लग रहा है मेरे में, तो व्हाई नॉट इन्वेस्ट 1 more year. यार रिस्क तो था यार, बिकॉज 99.90 के बाद दोबारा 9.90. अच्छा, बिफोर वी गो इनटू दैट, मेरी ये एडवाइस रहेगा फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग फॉर दिस ईयर एंड हु हैव टेकन लास्ट ईयर. अगर आपको सिडनम या पुम्बा मिल रहा है, चुपचाप ले लो. लेने के बाद यू कैन रिपीट, क्योंकि उसका एडवांटेज क्या है कि यार यू आर पेइंग लाख रुपए का फीस, बट 1 लाख रुपए खर्चा करके यू आर एटलीस्ट एश्योरिंग योरसेल्फ कि तुम्हारा जो 99.9 तो आने वाला है. यार मैडम का केस अलग था. शी सीए प्लस शी हैड वेरी गुड कॉन्फिडेंस कि शी कैन डू नेक्स्ट ईयर. और मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग कि अगले साल इतना स्कोर आएगा कि नहीं आएगा. सो दैट्स माय एडवाइस टू एवरीवन, बिकॉज इस साल मैंने 2 लोग को देखा है जिनका लास्ट ईयर सिडनम हो रहा था, नहीं ज्वाइन किया. पुम्बा वाले से मेरा अभी हुआ बात कि लास्ट ईयर पुम्बा छोड़ा, और इस बार पुम्बा छोड़ो, इस बार चेतना भी हाथ में नहीं आ रहा. पुम्बा यार लाख रुपए की फीस भी नहीं है, नॉट इवन 1 लाख रुपए. आप लेके छोड़ दो ना. ठीक है, आप लेके और फिर ऐसे तो मैं किसी और का सीट वेस्ट करूंगा. अरे बाबा, तो अपने करियर के ध्यान दे, दूसरे का सीट मत वेस्ट कर. और अगले साल अगर तेरा जेबी ना हुआ तो वैसे भी तेरे को वही जाना पड़ेगा. एनीवे, सो कमिंग टू दैट पॉइंट नाउ कि आपने चेंजेस क्या किया. सपोज लॉट ऑफ पीपल हैव टेकन सीईटी लास्ट ईयर, दे आर गोइंग टू गिव द सीईटी एग्जाम अगेन. हमारे चैट में कितने लोग हैं यहाँ पे जो गिवन द सीईटी एग्जाम लास्ट ईयर? तो आपने क्या चेंजेस लाया इन योर प्रिपरेशन ओवर द लास्ट 1 ईयर? सर चेंजेस तो ऐसा सच कुछ नहीं था. जो प्रिपरेशन था, जो बेसिक था, वो तो वैसा का वैसा ही था. मैंने सिर्फ इतना ये सोचा कि मैं कहाँ ज्यादा मार्क्स लूज कर रही हूँ. तो क्वांट्स में मैं डिसेंट हूँ, इतनी पुअर नहीं हूँ, बट वहां पे मैं मैक्सिमम मार्क्स लूज कर रही थी. तो उसको इम्प्रूव किया. ऐसे रोजाना स्पीड मैथ्स के लेक्चर्स अटेंड किए या खुद से प्रैक्टिस की. टेबल्स, फॉर्मूलाज, ये सब ऐसे रोज ऑलमोस्ट आधा घंटा मैं निकाल के रखती थी साइड में फॉर स्पीड मैथ्स, टू इम्प्रूव ऑन माई कैलकुलेशन स्पीड, ताकि एटलीस्ट क्वांट्स नहीं तो डीआई में मैं बराबर स्कोर कर पाऊँ.
और उसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग थोड़ा सा ऐसे था, डिसेंट था, बट इतना इक्का दुक्का था। तो उसमें भी मैंने इम्प्रूव करने का ट्राई किया, रोज एटलीस्ट 25-30 सम्स में सॉल्व करती थी, तो उससे उसमें स्पीड भी बढ़ गई और एक आइडिया आ जाता है बेसिक की एक प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है दिखते ही। तो बस वो चेंज किया। राइट राइट राइट। दैट्स व्हाई ना इस बार हमने क्या किया, वी इंट्रोड्यूस छोटा मॉक, 40 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन का टेस्ट एवरी डे, स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन। एवरी डे वी हैव टू गिव वन छोटा मॉक, लाइक 30 क्वेश्चन, सो दैट वी गेट यूज्ड टू ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम डे वन। एंड आपका कौन सा स्लॉट था? स्लॉट 1 2 3 4 5 6 कौन सा? स्लॉट 3। स्लॉट 3 था। हाँ तो तुम, अच्छा वो वाले इंटीग्रेशन वाले बच्चे थे। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस सब आ गया था। और फिर क्या किया, उसका छोड़ा के सॉल्व किया? पहले तो बहुत ऐसे लगा कि क्या करूं इसका, मुझे आ नहीं रहा है, और मेरे को ऐसे था कि अभी एवरीथिंग इज एट स्टेक, दिस इज माय लास्ट अटेम्प्ट, अभी जेबी नहीं मिला तो सिडनम जाना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर बाकी भी फैमिली प्रेशर था। और ऐसे लग रहा था सीए बन के ऐसे ही घर पे बैठी हूँ, वेस्ट कर रही हूँ, तो कुछ तो करना ही था। तो बट फिर मैं बहुत काम माइंडसेट से गई थी, बिकॉज पहले ही पता था स्लॉट 1 और 2 के एक्सपीरियंस से कि पेपर सब जम्बल्ड अप आ रहा है। और जम्बल्ड अप तो छोड़ो, इवन पजल्स भी एक साथ में नहीं आ रहे, एक क्वेश्चन इधर एक क्वेश्चन 25-30 क्वेश्चन के बाद। तो वैसा सब था स्ट्रेस, बट फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अगर मुझे नहीं आ रहा है तो इसमें फिर मैं 2 मिनट भी बिगाड़ू तो मतलब नहीं है। तो मैं ऑप्शन सी यूजुअली मार्क करती हूँ, अगर फ्लूक लगाना होता है तो ऑप्शन सी मार्क करके फिर आगे बढ़ गई। फिर लास्ट में तो टाइम ही नहीं मिला वापस से देखने का भी, बट जो था वैसे ही, बस एक काम माइंडसेट था कि ठीक है नहीं आ रहा, छोड़ो आगे बढ़ो। तो गाइस आप ये नोट कर लो, दो दो चीजें, एक तो जब नहीं जम पा रहा चुपचाप छोड़ के आगे बढ़ो, इवन टॉपर्स डू दैट, ऐसा नहीं कि टॉपर लोग कुछ अलग से आते हैं। नंबर टू, सी ऑप्शन को याद कर लो। सीईटी वालों को लगा होगा यार सबका तो सी क्यों आता है। तो सब करके आते हैं, सब करके आते हैं। अरे बाबा ऐसा कुछ नहीं है भाई, सी ऑप्शन मार्क करो, डी ऑप्शन मार्क करो, जो मर्जी मार्क करो, देयर इज नो थंब रूल। सी बीच में होता है तो वी लाइक टू टेक अ रिस्क, ना आगे ना पीछे, पर बीच में रहेंगे तो वैसे सी होता है, अदरवाइज देयर इज नो नथिंग लाइक दैट कि सी ज्यादा कॉमन है कि ई कॉमन है। Okay, superb. So, number one thing you said that you changed is you studied more for maths because maths आपका area था जहाँ पे आपने improve किया. What all other thing you did? Mocks आपने, how many mocks you have taken? सर मॉक्स मेरा प्लान था अराउंड 25-30 मॉक्स का, बिकॉज दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट, बट फिर इंडेफिनाइट डिले होता ही चला गया एग्जाम में, तो थोड़े टाइम तो मेरा टच भी छूट गया था पढ़ाई से, 2-3 महीना समझो टच ही नहीं था कुछ। फिर बाद में धीरे धीरे वापस से स्टार्ट किया, तो एडिशनल मॉक्स भी बाय किए, थोड़ा बहुत ऐसे, पहले वीक में एक एक या दो दो देती थी, फिर जैसे एग्जाम की डेट आ गई तो वीक में 3 या 4 देने लग गई। उसको एनालिसिस बहुत अच्छे से करना, जो भी मॉक्स एनालाइज कर रहे हो, क्योंकि उसमें ही आपका पूरा गेम चेंज हो जाएगा। अगर एनालाइज ठीक से नहीं किया, सिर्फ मॉक्स खाली क्वांटिटी के बेसिस पे देते जाए तो कुछ भी मतलब नहीं है। तो एनालाइज करके मैं, इवन एलआर में मैं स्ट्रॉन्ग थी, बट देन टू उसमें भी कुछ कुछ वीक एरिया थे, जैसे फॉर एग्जांपल सिलोजिज्म, उसमें मुझे 30 से 40 सेकेंड्स लग रहे थे, स्टार्ट में 40 लगते थे। तो मैंने उसमें भी थोड़ा इंप्रूव करने का ट्राई किया कि 40 से भी अगर थोड़ा कम हो पाए तो लास्ट में अराउंड 25 to 30 सेकेंड्स में मेरा एक नॉर्मल सम हो जाता था। तो वैसे हर एक एरिया में इम्प्रूवमेंट था, बट मैथ्स पे ज्यादा फोकस था। Okay, superb, superb. तो मॉक्स पे ज्यादा ध्यान दिया आपने। तो लाइक वन शुड आस्क मी कि मैं छोटा मॉक दूं कि फुल लेंथ मॉक दूं, या छोटा मॉक की बेसिकली टेस्ट, एक हाफ एन आवर का टेस्ट, आप हर दिन सुबह उठ के एक आधे घंटे का टेस्ट देना है, सो दैट यू गेट यूज्ड टू द टाइमिंग एंड स्पीड थिंग। एंड बेबी मॉक्स एंड एडवांस मॉक्स इस हफ्ते में एक मॉक आप निकालते जाओ, एवरी वीक यू हैव टू गिव वन मॉक, दैट विल माय एडवाइस। अच्छा, आपने अभी सीईटी दिया था लास्ट ईयर, दैट इज मार्च 2020, जब कोविड आया था, और सेकंड अटेम्प्ट आपने दिया है अभी जब कोविड वेव 2 जा चुका था। सो Yes. कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड, बिकॉज तभी जॉब भी नहीं था, बिकॉज दिस इज सेम प्रॉब्लम इज गोइंग टू कम दिस ईयर एज वेल, क्योंकि इस बार हमें नहीं पता कि सीईटी कब होगा, और ऊपर से वेव भी आ गया या कुछ गड़बड़ हो गया तो वी डोंट नो। तो हाउ टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड फॉर दिस 1.5 year का टाइम, और अभी सीईटी मार्च में, मी एज अ टीचर और यू एज अ स्टूडेंट हैव टू अज्यूम कि मार्च में एग्जाम होगा, ताकि आप अपनी पूरी प्रिपरेशन मार्च तक खत्म करके रखो, उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम जितना मिलेगा फिर की मोर मॉक्स जैसे आपने किया। तो हाउ टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड? जो एंड गोल है अपने माइंड में वो बहुत क्लियर रखो। मैं जैसे बहुत क्लियर था मेरे माइंड में कि मुझे जेबीआईएमएस इस साल क्रैक करना ही है,
और मेरी फैमिली ने बहुत ज्यादा मुझे सपोर्ट किया। जैसे आप बीच में आप पेरेंट्स के लिए वीडियो बना रहे थे कि पेरेंट्स सपोर्ट करो बच्चों को, वो भी मुझे अपने घर पे बताने की जरूरत नहीं पड़ी, दे ऑलरेडी अंडरस्टैंड मी वेरी मच। और सबसे ज्यादा सपोर्ट फैमिली का ही था। और ये जब भी कोविड डिले हुआ तो अपना मेंटल टोल तो होता ही है कि इंडेफिनेटली डिले हो रहा है, अभी एग्जाम होगी भी कि नहीं पता नहीं। तो वो टाइम थोड़ा सा और अपना एक्स्ट्रा करिकुलर बिल्ड करने में मैंने यूज किया, थोड़े सर्टिफिकेशंस लिए। इसके अलावा मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है, सो आई रेड मल्टीपल बुक्स ड्यूरिंग दीज टाइम्स। इट हेल्प मी ड्यूरिंग माई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकेबुलरी, ग्रामर ऑल्सो। तो ऐसे अपने आप को थोड़ा बीच बीच में लो टाइम आता है, वो टाइम से स्टडी से ब्रेक ले लो, थोड़ा बाहर घूम फिर के आओ, फ्रेंड से बात करो, अच्छा फ्रेंड सर्कल बिल्ड करो जो आपको रियल में वेल विश करना चाहते हो, ना कि ऐसे सिर्फ कि जो लोग टॉन्ट्स भी बहुत सारे लोग मारते हैं कि इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसे ही बैठे हैं घर पे कुछ नहीं कर रहे हैं। बट वो लोगों से थोड़ा दूरी बनाए रखो, थोड़े पॉजिटिव पीपल को अपने अराउंड रखो, जिससे आपका भी माइंडसेट प्रॉपर हो। Right. Which additional certification you gave? That's the question that have come. We are getting here. So first of all, I searched for the certifications since I am already a CA. Many certifications जैसी मैं जाती थी उनका कोर्स पढ़ते ही पता चलता था कि ऑलरेडी दिस ऑल इज कवर्ड इन CA। फिर भी मैंने एक दो NCFM के सर्टिफिकेशंस लिए, NISM अभी रजिस्टर किया है। इसके अलावा कॉर्पोरेट फाइनेंस इंस्टीट्यूट CFA इंस्टीट्यूट का भी सर्टिफिकेशन है, एक इन्वेस्टर फाउंडेशन का, वो। और बस फिर मैंने थोड़ा लिखना भी स्टार्ट किया, खुद का ब्लॉग्स वगैरह स्टार्ट किए, थोड़ा डिजिटल टैक्सेशन पे या करंट अफेयर्स पे लिखना स्टार्ट किया रिलेटेड टू माय CA डिग्री। दैट्स ऑल। Super, super. Okay, great. So, Abhi, what's your plan of completing? What was your plan of completing the syllabus? Syllabus वाइज जो आपने पहले टर्म में कंप्लीट कर लिया, हाँ, तो पहले टर्म का कुछ आपका आइडिया दे दो, हाउ मेनी मंथ्स यू प्रिपेयर्ड फॉर 99.90 हेलो, plan? What सॉरी सर, आई वाज नॉट एबल टू हियर months? यू। Sorry, how many months you prepared last year for 99.90? लास्ट ईयर 2 मंथ्स। 2 months का प्रिपरेशन एंड 2 month। अच्छा, कैट के बाद ना? हाँ, कैट के बाद। हाँ, जनवरी में स्टार्ट किया। मैं CET का कोई इरादा नहीं था कि CET भी करना है अटेम्प्ट, और बहुत सारी एडिशनल एग्जाम्स दी थी, सब में थोड़ा थोड़ा मार्जिन से रह जाता था। जैसे एनमैट में आई स्कोर 258 एग्रीगेट, बट क्वांट्स में 74 थे, तो 76 था उनका कट ऑफ, तो 2 मार्क्स से वो भी रह गया। ऐसे सब में छोटा छोटा मार्जिन से रह जा रहा था, तो ऐसे सोचा CET इज द लास्ट इन द लीग ऑफ MBA एंट्रेंस एग्जाम्स, तो CET भी अटेम्प्ट करके देखती हूँ। दैट्स व्हाई आई गेव CET इन द फर्स्ट प्लेस। Okay, okay, okay. Great, no problem at all. Okay, superb. So I am now moving to section number 2. One second.